Hello friends, my name is Hitendra Chaudhary and I welcome to all of you to iTube classes. Friends, on this channel we have started a brand new series where we are going to cover every subject, not through the regular way of covering topics in detail, but through the analysis of MCQs. In these MCQs, we are going to take previous year questions asked in your exams along with the supplementary questions. This series is going to be extremely fruitful for you if you are preparing for the UPSC 2021 and otherwise as well. Not only MCQs, but we will be taking some questions from the GS paper 3, but their analysis would be done after your prelims. Before the start of this whole series, let me tell you that first subject that we are going to take is economy. And in economy also, we are going to take national income as our topic. This will be a 40 to 45 day series where every subject would be covered through MCQs. And this is going to be a bilingual series. So you don't need to be worried about the language here. So let's get started. So the first topic that we are going to take is national income, and by national income I mean GDP, GNP, NDP and NNP. All of these are called national income. Okay, but NNP is denoted in capital NI, but all these incomes are shown as normally as national income, not in the capital letter. And I assume that all of you have some idea about what is GDP, what is GNP, what is NDP, what is NNP, and some details I am going to cover in the classes as well as we are going to cover these questions also. Okay, so let's start from the first question. This question was asked in UPSC 2013. This question was asked in UPSC 2013. The question is, the national income of a country So the question is, the national income of a country for a given period is equal to total value of goods and services produced by the nationals, sum of the total consumptions and investment expenditure, sum of personal income of individuals, and money value of final goods and services produced. So he is talking about national income. So definitely he is going to talk about GDP, GNP and all that perspective. And from these statements, first we should know that which statement is satisfying that the definition of national income. So solution is A. It means that all these B, C and D, they are incorrect. Why they are incorrect? First look into that. Money value of final goods and services produced, and here examiner abruptly finished this question. अगर यहाँ पे लिखा होता goods and services produced within the boundary of the country, तब हम समझ जाते दैट वो किसके बारे में बात कर रहा है, जीडीपी के बारे में बात कर रहा है. अगर वो ये बोलता कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स ओनली, तब हम समझ जाते कि तब भी वो नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहा है. लेकिन यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज हाफ डन. So that is why we are going to neglect this statement. Sum of personal income of all individuals. Sum of personal income. Look, if we go by the method of income, like there are three methods to calculate the GDP or national income. First method is income method, second is expenditure method, third is output or production method. In this method of national income, we can clearly see the three factors. Income of laborers, it means salaries, profit of private sector businesses like Tata, Ambani and all that, rent income from the ownership of the land, like if you have a land and if you are given that land on rent, so definitely you are going to get some rent on that. So this is the income method. Here only this first factor is covered in the statement, not these two factors. तो सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ये अकेला फैक्टर जो है नेशनल इनकम को डिसाइड नहीं करता है. दूसरे दो फैक्टर यानी कि प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर और रेंट, ये दोनों फैक्टर भी नेशनल इनकम को कंसीडर करना चाहिए था. तो बिकॉज ये स्टेटमेंट भी हाफ है, सो वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो. सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इज नॉट द नेशनल इनकम. लेकिन इसमें अगर हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देंगे प्राइवेट सेक्टर का, और अगर इसमें हम लोग रेंट अगर ऐड कर देंगे, तब ये नेशनल इनकम डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता. सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट दिस एज वेल. सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. नाउ go for this.
expenditure method. Consumption of expenditure, definitely yes. Investment, okay. Government expenditure and net export. These two factors are also not here. This is the second method of calculating GDP, which is called expenditure method. Here we consider the कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जहाँ पे हम लोग डेली जो कुछ सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये फैक्टर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं. सेकंड फैक्टर जो है इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं. थर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं. और थर्ड जो फोर्थ वन जो है वो नेट एक्सपोर्ट यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करते हैं. ये चारों मिलके जो है नेशनल इनकम बनाते हैं. लेकिन अपने स्टेटमेंट में ओनली टू आर गिवन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट. अगर वो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट भी ऐड कर देता तब हम लोग जो समझ जाते कि इट इज टॉकिंग अबाउट द नेशनल इनकम. सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स बी, सी एंड डी, दे आर नॉट कंप्लीट. नाउ गो फॉर द फर्स्ट वन, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स. Produced by the nationals. It means here we are going to detect the income of foreigners. And this also does not talk about the domestic boundary. अगर वो domestic boundary की बात करता तो वो GDP की बात करता. Look here, GDP. यहां पे वो किसके बारे में बात कर रहा है? GNP के बारे में बात कर रहा है. GNP is the income which is earned by the nationals only. Right? So GDP के अंदर से हम लोग क्या करते हैं? फॉरेनर्स की इनकम माइनस कर देते हैं और इंडियंस की प्लस कर देते हैं, यानी कि नेशनल्स की, जो हमारे इंडियन नेशनल्स हैं उनकी प्लस कर देते हैं. एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट GNP. एंड GNP इज द नेशनल इनकम. सो दिस डेफिनेशन इज देयर. A talks about GNP and GNP is our national income. GDP is also national income, but GDP की definition भी किसी में complete नहीं है. NNP is also national income, but NNP की भी include नहीं है. NDP is also national income, but NDP भी यहाँ पे include नहीं है. इन चारों statement में only A option talks about the definition of GNP. That is why this is the right option that we have. Total income of goods and services produced by the nationals. It means it is talking about GNP, and GNP is not a geographical aspect, right? It's not a geographical thing. GDP, GNP. GDP is a geographical point, है ना, where we consider everything which is produced in the inside the domestic boundary of a country in a given period of time, which is usually 1 year. Okay, so this is your first question, solution A. So we have also given the explanation. If you want explanation, then you can tell us. We will provide you the this content as well. Okay. Second question also talks about GDP. First, consider the following statements. Real GDP measures an economy's total goods and services in a given year, okay, taking into account changes in the price level. Okay, so यहाँ तक statement में it is talking about GDP. Okay, the real GDP can never be more than the nominal GDP. Okay, we will look into that. So first of all, we should know what is real GDP. GDP is the value of all goods and services produced within the boundary of a country, and here we consider the final goods and services, not the intermediate one. Okay, ये हमें पहले से ही पता है. Now, what is real GDP? Real GDP is that GDP which is counted by taking into account the base year. Base year. और जब हम करंट प्राइस पे करते हैं, जैसे सपोज यू नीड टू कैलकुलेट द GDP ऑफ 2021, अभी 2021 चल रहा है, राइट? सो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ 2021 multiplied by the price of goods and services of 2021. This is your current price. Okay, this is your current price. और जब हम बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं, it means like suppose I take a base year of 2015. It means quantity of 2021
मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 2021 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ 2015. Here I am calculating our GDP in comparison to the 2015 which is our base year. तो जब GDP बेस ईयर पे कैलकुलेट की जाती है it is called real GDP. Here we are considering constant price. Note the current price. Current price means अगर मैं 2021 में कैलकुलेट कर रहा हूं तो 2021 का प्राइस इट मींस करंट प्राइस. अगर मैं किसी बेस ईयर पे कंसीडर कर रहा हूं, किसी प्रीवियस ईयर पे कंसीडर कर रहा हूं जो जनरली बहुत स्टेबल ईयर होता है, तो उसको मैं कांस्टेंट प्राइस पे करता हूं. और जब मैं कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट करता हूं दिस इज कॉल्ड रियल जीडीपी. और जब मैं करंट प्राइस पे करता हूं दिस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये, क्योंकि मैं टॉपिक तो करवा नहीं रहा हूं, आई एम एज्यूमिंग कि आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा पहले से ही. तो कांस्टेंट प्राइस पे जब मैं कैलकुलेट करता हूं इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी. और जब मैं करंट प्राइस पे कैलकुलेट करता हूं इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी इज नॉट द रियल जीडीपी, इट इज आर्टिफिशियल जीडीपी. व्हाई? बिकॉज हेयर आई एम नॉट कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, बट हेयर आई एम कंसिडरिंग इन्फ्लेशन. So this is the better way to calculate the national income और GDP. Okay. So अब आप ये समझ लो, सीधी सी बात है, जैसे 2015 है और 2021 चल रहा है, तो 2015 की जीडीपी के बेसिस प्राइस पे अगर मैं जीडीपी कैलकुलेट करूंगा और 2021 के प्राइस पे अगर मैं जीडीपी कैलकुलेट करूंगा तो आप बोलोगे सर हमेशा 2020 की जीडीपी ज़्यादा आएगी क्योंकि 2021 में तो प्राइस ज़्यादा होंगे 2015 के कंपैरिजन में. बट ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ऐसा तब होता है जब चीज़ों का प्राइस इंक्रीज होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2021 का प्राइस जो है 2015 से ज़्यादा ही होगा. नो, देयर इज़ नो गारंटी. यस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपन्स, बट इन सम केसेस इट मे नॉट हैपन. हो सकता है प्राइस डिक्रीज भी हो गया हो. उस केस में रियल जीडीपी जो है, रियल जीडीपी, इट वुड बी मोर देन नॉमिनल जीडीपी. बट इन नॉर्मल केसेस नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज, most of the cases it is always more than real GDP, but it can be less than also, it can be more than also. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो हमेशा उससे ज़्यादा ही होगा. ओके, हो सकता है 2015 में प्राइस जो है वो कम भी हो सकता है 2015 के कंपैरिजन में 2021 में. ओके, सो दैट इज़ द थिंग. और हमारा भी जो बेस ईयर हम लोग कंसिडर करते हैं दैट इज़ 2011 2012. ठीक है, अभी के लिए हम लोग वो कंसिडर करते हैं ना. चलिए, तो पहली स्टेटमेंट क्या कहता है? रियल जीडीपी मेजर्स एन इकोनॉमीज टोटल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन ईयर. ओके, टेकिंग इनटू अकाउंट चेंज इन द प्राइस लेवल. ओके, डेफिनेटली यहां पे तो इन्फ्लेशन वो कंसीडर करता ही है. इन्फ्लेशन इज कंसीडर्ड व्हाई कैलकुलेटिंग द रियल जीडीपी. रियल जीडीपी कैन नेवर बी मोर देन नॉमिनल जीडीपी. नो, दिस इज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट. नेवर, ऑलवेज, मस्ट, दीज आर एक्सट्रीम स्टेटमेंट. और आपके एग्जाम में आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कि इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस होंगे ही होंगे. देखो, कुछ फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर वो बोलेगा कि माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन नेपाल, अब यहां पे तो कोई डाउट नहीं है. अब अगर वो बोलेगा कि सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, आप बोलोगे सर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्या भी रॉन्ग? नो, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. तो वो तो करेक्ट होगा ही होगा. बट यहां पे इस तरह के क्वेश्चंस में जो है देयर इज सम सब्जेक्टिविटी, सो दैट इज व्हाई दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. और आपके यूपीएससी में भी आपको ऐसा बहुत बार मिलेगा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब भी वो देंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज रॉन्ग. तो आप उसको नेग्लेक्ट वैसे भी कर सकते हो. सो रियल जीडीपी कैन बी मोर देन नॉमिनल जीडीपी, इट कैन बी लेस देन nominal GDP, right? So this statement is incorrect. So we are left with the A option. Okay, so that is there. So that statement is explanation is also given here, है ना. तो ये आप इसको भी पढ़ सकते हो. वैसे जो मैंने बताया है वो सब ही यहाँ पे है, कुछ नया नहीं है. चलिए, question number 4 is consider the following statements regarding real and nominal GDP. Again, this question is about real and nominal GDP. And this question was asked in 2014.
राइट। चलिए, रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज द बेस ईयर। ऑफ कोर्स, रियल जीडीपी मीन्स कांस्टेंट प्राइस and constant price means base year, right? When we calculate our GDP on constant price, it means we are considering the base year। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने किया था। और जब करंट प्राइस पे करते हैं, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। तो करंट प्राइस में निकालने के लिए यू डोंट नीड बेस ईयर, है ना। अगर आपको 2021 में आपकी परफॉर्मेंस मेजर करनी है, तो आप उसको प्रीवियस किसी ईयर से कंपैरिजन कर सकते हो, तभी तो पता चलेगा कि आपने ग्रो किया है या फिर आपका डाउनफॉल हुआ है ना। तो दैट सिचुएशन इज देयर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट डेफिनेटली। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट? नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द पर्टिकुलर। ऑफ कोर्स दिस इज करंट ईयर और करंट प्राइस, है ना, प्राइस ऑफ द करंट ईयर, तो दैट इज योर नॉमिनल जीडीपी। और जब प्राइस ऑफ द बेस ईयर, दैट इज योर रियल जीडीपी। तो डेफिनेटली बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो आवर ऑप्शन शुड बी, आंसर इज सी। सो वी कैन neglect all these A, B and D, and that same statement is given here as well. Okay, चलिए। सो करंट प्राइस मीन्स, पहले ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, करंट प्राइस मीन्स जीडीपी एट करंट प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ द करंट ईयर। जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस मीन्स, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मीन्स क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर। मतलब क्वांटिटी ऑफ 2021 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ 2012 डिवाइडेड बाय जो भी आपको करना है प्राइस ऑफ द बेस ईयर। तो हम लोग उसको जीडीपी ऐसे निकाल सकते हैं, प्राइस ऑफ द बेस ईयर, राइट, प्राइस ऑफ 2012। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड दिस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। सो अगर मैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है जीडीपी डिफ्लेटर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर दैट यू नीड टू नो। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 5 इज विद रेफरेंस टू जीडीपी डिफ्लेटर। देखो आ गया ना। सो नॉमिनल जीडीपी divided by real GDP multiplied by 100 is equal to GDP deflator. Okay. With reference to GDP deflator, consider the following statements. It is the ratio of GDP measured at the current price to the GDP measured at the constant price. Of course, this is GDP at current price, this is GDP at constant price. तो पहली स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? It automatically reflects the change consumption pattern and structural transformation in the economy. Yes, because we are considering the base year also, so definitely we are considering the inflation. So GDP deflator is calculated to know about the inflation. और जब हम inflation की बात करते हैं, it means we are talking about the changes in the pattern of consumption and the structural transformation of the economy. क्योंकि इन्फ्लेशन जब आपको पता चल जाती है कम थी कहाँ ज़्यादा थी, तो इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि लोग कब ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, कब कम डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इन्फ्लेशन, राइट। और डिमांड मतलब कंजम्पशन एंड द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, राइट। सो दैट इज देयर। क्वेश्चन नंबर, देखो थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, सो वी हैव गिवन दैट एज वेल, अदरवाइज जितना भी आपका एक्सप्लेनेशन दिया है दैट वुड बी सफाइस फॉर यू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इट इज कैलकुलेटिंग बाय एडिंग रेजिडेंट्स। देखो हम लोग रेजिडेंट्स को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग GNP की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टेटमेंट पूरा पढ़ेंगे। इट इज कैलकुलेटिंग बाय एडिंग रेजिडेंट्स इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एंड सब्ट्रैक्टिंग फॉरेन रेजिडेंट्स इन्वेस्टमेंट income earned within the country to the gross domestic product. Yeah, definitely that is there. तो हम लोग जीडीपी में से क्या करते हैं? हम फॉरेनर्स की इनकम को माइनस कर देते हैं और नेशनल जो हैं इंडियन रेजिडेंट्स उनकी इनकम को जो है प्लस कर देते हैं। दैट इज योर GNP.
ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, देखो इसके वर्ड के अंदर ही लिखा हुआ है नेशनल। नेशनल मीन्स सिटीजन, मतलब रेजिडेंट्स। ओके, सो वी आर एडिंग रेजिडेंट्स एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग फॉरेन रेजिडेंट्स। सो दिस इज योर GNP। बस सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे हैंडल हो रहा है। अगर आपको GDP GNP के बारे में पता है तो GDP इज नथिंग बट द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री विद इन अ गिवर। अब GDP में कोई फर्क नहीं पड़ता हु आर प्रोड्यूसिंग, दे कैन बी इंडियन नेशनल्स, दे कैन बी फॉरेनर्स, बट इट्स अ जियोग्राफिकल फिनोमिना। क्या फर्क पड़ता है? दैट वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, डजंट मैटर हु आर प्रोड्यूसिंग, सो व्हाट मैटर्स इज वेयर। GNP में व्हाट मैटर्स इज हु आर प्रोड्यूसिंग, नोट द वेयर इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो जैसे टाटा है, मिस्टर टाटा, अगर वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं इट वुड बी पार्ट ऑफ GNP, अगर वो अमेरिका में प्रोड्यूस कर रहे हैं इट वुड बी पार्ट ऑफ GNP, है ना, बिकॉज ही इज इंडियन नेशनल। ठीक है, अब जैसे फेसबुक है, अगर वो इंडिया में अर्न कर रही है इट वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया GNP बिकॉज ही इज अमेरिकन सिटीजन, है ना। और अगर फेसबुक अमेरिका में कर रही है तो वो अमेरिका की GNP का पार्ट होगा, इंडिया में कर रही है तो वो भी अमेरिका की GNP का पार्ट होगा। सो दैट थिंग इज देयर। तो इन GNP व्हाट मैटर्स इज हु आर प्रोड्यूसिंग, doesn't matter where it is being produced. Okay, so our GNP would be consumption plus gross private investment plus government expenditure plus net exports plus next factor income from the abroad. So that is going to be our GNP, or GNP simply means GDP minus foreigners income plus Indians or Indian citizens incomes. So that is simply over there. So that is your GNP. Next that we have is, which among the following bodies estimate the national income of India? So it's a very factual question. ठीक है, नेशनल इनकम इंडिया की या GDP जो है कौन कैलकुलेट करता है? सिंपल क्वेश्चन, इट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस इज द मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री सिर्फ GDP कैलकुलेट नहीं करती है, ये मिनिस्ट्री जो है IIP भी कैलकुलेट करती है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और CPI भी करती है भैया, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। तो ये इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने का तरीका है, CPI। पहले हम वो इन्फ्लेशन को WPI से मेजर करते थे, नाउ वी हैव चेंज्ड इट एंड नाउ CPI इज बीइंग कैलकुलेटेड बिकॉज इन CPI वी कंसिडर सर्विसेज एज वेल। ओके, एंड दिस इज द बेटर वे, दिस इज बेटर वे। अभी जो है इंडिया में GDP को कैलकुलेट करने का, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो है वो तरीका चेंज हो गया है। वी हैव चेंज द बेस ईयर एज वेल, वी हैव चेंज्ड सम अदर थिंग्स ऑल्सो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन कौन से इंडिया के अंदर जो है चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 8? इट इज सेड दैट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट is more realistic assessment of the economy's resources than gross domestic product. This is because, अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? NDP। देखिए, नेट का मतलब होता है प्योर, प्योरेस्ट फॉर्म, और जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध, यानी कि इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। दिस इज द प्योरेस्ट इनकम जिसके अंदर नेट आ जाता है। और प्योर का मतलब तो ये है दैट वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट अनवांटेड थिंग्स, और अनवांटेड का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन होता है, डेप्रीसिएशन। जैसे मेरी 10,000 रुपये इनकम है, ठीक है, चलिए आप इसको छोड़िए। जैसे मेरे पास एक कार है, अभी अभी नई कार ली है 10 लाख रुपए की, अगर मैं इसको 2 साल के बाद बेचूंगा तो क्या वो 10 लाख रुपए की रहेगी? ऑफ कोर्स नहीं रहेगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, उसका हार्डवेयर पुराना हो चुका है, उसका जो सामान था वो पुराना हो चुका है, उसकी माइलेज जो है वो कम हो चुकी है, उसका लुक जो है वो भी खराब हो चुका है। सो उसके अंदर क्या हो रहा है? वियर एंड टियर, वियर एंड टियर। तो डेफिनेटली जब 2 साल के बाद मैं उसको परचेज करूंगा, सो आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ वियर एंड टियर। तो हो सकता है 2 साल के बाद उसको 7 लाख रुपए का लो या 6 लाख रुपए का लो। तो GDP के अंदर भी ऐसा ही होता है, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड, सो देयर इज गोइंग टू बी डेप्रीसिएशन। हमेशा कुछ तो नया नहीं, ये बिल्डिंग, ये पंखा, ये मोबाइल, ये आईपैड, ये लैपटॉप, कुछ भी नया नहीं रहेगा ना। सबके अंदर जो है वियर एंड टियर हो रहा है, सबका हार्डवेयर जो है वो घिस रहा है, राइट।
सो दैट इज कॉल्ड वियर एंड टियर, और इसको इकोनॉमी के टर्म में बोलते हैं डेप्रिसिएशन. सो वैल्यू ऑफ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डेप्रिसिएटेड एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स को छोड़ के मोस्टली हर चीज की जो है वैल्यू का डेप्रिसिएशन होता है. सो अगर मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बचती है प्योर फॉर्म ऑफ जीडीपी. प्योर का मतलब होता है नेट, इट इज कॉल्ड नेट जीडीपी और एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन फ्रॉम माय जीडीपी टू कैलकुलेट द प्योर फॉर्म ऑफ जीडीपी. ओके, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, एनडीपी टेक्स इनटू अकाउंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज पेड विच जीडीपी डज नॉट. ओके, ठीक है, इसको भी देखते हैं क्या कहता है ये. एनडीपी अकाउंट्स फॉर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन विच जीडीपी डज नॉट. ओके, ठीक है, ये भी हम लोगों ने कर लिया. जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तभी तो जीएनपी एनडीपी आएगा, तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, देखिए, एनडीपी टेक्स इनटू अकाउंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज पेड विच जीडीपी डज नॉट. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. देखिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैसे निकालते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, सो वी डू नॉट अकाउंट सब्सिडीज और एनडीपी डजंट मैटर. एनडीपी में भी यही होगा. अगर आप एनडीपी मार्केट प्राइस में निकालोगे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NDP at factor cost plus indirect taxes minus subsidies. So we do not include subsidies. So that first statement is incorrect. We only include taxes. We do not include subsidies. So that is why this statement is incorrect. Only this statement is correct. So this is your answer is B. ठीक है, that same explanation is given here. Now question number 9. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड. जो पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है. देर आर 3 मेथड्स, राइट. वी हैव दिस डायग्राम, एंड देर आर 3 मेथड्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. फर्स्ट इज योर इनकम मेथड, राइट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनकम ऑफ लेबरर्स यानी कि सैलरीज, ठीक है. सेकंड में क्या करते हैं, प्रॉफिट्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, रेंट, एक्सपेंडिचर मेथड, एंड लास्ट वन इज आउटपुट मेथड, जिसे प्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है. सो वी हैव ओनली दीज 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द जीडीपी, एंड इट इज सपोज दैट ऑल दीज मेथड आर गोइंग टू बी इक्वल. हालांकि वो इक्वल नहीं होते हैं. कभी फ्यूचर में अगर सीरीज में कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली उसको हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो वैल्यू एडेड मेथड, income method, expenditure method, revenue method. No, there is no revenue method. There is income method, there is expenditure method, and there is production method or output method or value added method. These are the 3 methods and they are the same thing. Because जब आप किसी चीज़ में वैल्यू ऐड करेंगे तभी तो उसको प्रोडक्शन करोगे ना, और जब उसको प्रोडक्शन करोगे तभी तो आप आउटपुट करोगे. सो दीज ओनली दीज 3 मेथड्स आर देयर. सो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द स्टेटमेंट जिसके अंदर 4 है. तो इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है. सो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दैट. सो वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट ओनली विद द ए ऑप्शन. ओके, सो एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड. दिस इज योर आउटपुट मेथड और दिस इज योर वैल्यू एडेड मेथड. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहला क्या कहता है, नेशनल इनकम इज ऑलवेज मोर देन जीडीपी. भैया देखो, ऐसा कुछ नहीं है. नेशनल इनकम इज ऑलवेज मोर देन जीडीपी. इट कैन बी लेस देन जीडीपी, इट कैन बी मोर देन जीडीपी. एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, सो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस. सेकंड क्या कहता है, नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू जीडीपी. नहीं यार, it can be less than, it can be equal, it can be more than.
है ना, तो यहाँ पे भी इट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट। नेशनल इनकम इज ऑलवेज लेस देन, देखो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, ऑलवेज। ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू रिजेक्ट देम। ओके, अगर आप नेशनल इनकम की बात कर रहे हो, सपोज आप यहाँ पे जीएनपी और एनएनपी की बात कर रहे हो, इट कैन बी लेस देन जीडीपी, इट कैन बी मोर देन जीडीपी। ओके, जीएनपी जो है, जीएनपी इट कैन बी लेस देन जीडीपी और इट कैन बी मोर देन जीडीपी। जैसे जापान के केस में जीएनपी इज मोर देन जीडीपी, इंडिया के केस में जीएनपी इज लेस देन जीडीपी। वाई? बिकॉज इंडिया में मोर फॉरेनर्स आर मेकिंग इनकम रादर देन इंडियंस मेकिंग इनकम। बट जापान की कंपनी तो बहुत सारी दुनिया भर में फैली हुई हैं, तो जापानीज जो नेशनल्स हैं दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अब्रोड, तो जापान की जो है जीएनपी ज़्यादा है रादर देन जीडीपी। लेकिन इंडिया में जो है ज़्यादा फॉरेनर्स जो हैं उनकी इनकम होती है, तो वो भैया पैसा बाहर लेके चले जाते हैं, है ना। सो इंडिया के केस में ये है, तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है? नेशनल इनकम मे बी लेस और मे और मोर देन। देखो ये बढ़िया एकदम डेमोक्रेटिक वे है ना, बीच का मिडिल पाथ है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। फोर्थ में क्या कहता है 11th क्वेश्चन में, व्हाट इज रीजन दैट पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस इज मोर देन एट फिक्स्ड प्राइस? पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस इज मोर देन द एट द फिक्स्ड प्राइस। देखो करंट प्राइस का मतलब है प्राइस ऑफ 2021। फिक्स्ड प्राइस मतलब कांस्टेंट प्राइस, इसका मतलब आप यहां पे समझ लो 20 and 12। तो डेफिनेटली 2021 में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, 2012 में कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चीज़ों का प्राइस बढ़ गया है, आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है ना, प्राइस बढ़ गया है। उस प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी ज़्यादा है। जैसे इस लैपटॉप का प्राइस जो है वो 2021 में ज़्यादा है, 2012 में कम था। तो जब लैपटॉप की कीमत बढ़ जाएगी, दूसरे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की जो है उनकी भी अगर कीमत बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली 2021 में जीडीपी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और 2012 में जो है जीडीपी कम हो जाएगा। और जब जीडीपी ज़्यादा होगा तो पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जीडीपी को ही तो पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। सो सिंपल चीज़ है ना। सो व्हाट कुड बी द रीज़न? इन्फ्लेशन इज द रीज़न। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस राइज ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। भैया ऐसा नहीं होता, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से तो पर कैपिटा इनकम कम होना चाहिए था ना, क्योंकि जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इसकी वजह से तो कम होना चाहिए था, ज्यादा नहीं। ये तो ज्यादा की बात कर रहा है, मोर की बात कर रहा है। ड्यू टू नेगेटिव ग्रोथ रेट इन प्राइस लेवल। अब नेगेटिव ग्रोथ रेट अगर प्राइस लेवल होता तब भी ये पर कैपिटा इनकम कम होना चाहिए था, लेकिन ये तो ज़्यादा की बात कर रहा है। ड्यू टू इन्फ्लेशन, यस दैट इज द फैक्टर। ड्यू टू इंक्रीज इन सैलरी रेट, सब चीज़ें सैलरी पे डिपेंड नहीं करती है, बात है प्राइस की। चीज़ों का गुड्स एंड सर्विसेज जब उनका प्राइस ज़्यादा हो जाता है तब ओवरऑल जीडीपी ज़्यादा होती है। डेफिनेटली उसमें सैलरी भी एक फैक्टर होता है। सैलरी की वजह से इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपकी डिमांड बढ़ती है ना, यू कंज्यूम मोर थिंग्स, और व्हेन यू कंज्यूम मोर थिंग्स तो वहाँ पे इन्फ्लेशन जनरेट हो जाता है। बट दिस थर्ड फैक्टर और दिस सी इज बेटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी, ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट, मतलब बायोडाइवर्सिटी। जब भी हम लोग जीडीपी को, अब जीडीपी के लिए क्या है, वी नीड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड थिंग्स, और उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन करते हैं। अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, आप जंगल काटते हो, और आप जो फैक्ट्री लगाते हो तो बहुत सारा पोल्यूटेंट्स और हार्मफुल गैसेस आप एनवायरनमेंट में ऐड करते हो, तो उससे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को बहुत सारा लॉस होता है। ठीक है, जब आप उस लॉस को भी कैलकुलेट करने शुरू कर देते हो अपने जीडीपी के फिगर्स में, ठीक है, तो आप जो है ग्रीन जीडीपी निकालते हो। जैसे मान लो आपका जीडीपी हुआ 100 रुपीज़, लेकिन आपका एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया 50 रुपये का, तो आपका फाइनल जीडीपी कितना हुआ? ओनली 50 रुपीज़।
हाँ वो बात अलग है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अभी हमारे पास कोई मेथड नहीं है, बट या ग्रीन जीडीपी का मतलब ये है कि वी कैलकुलेट द डिस्ट्रक्शन कोज्ड टू द इकोसिस्टम एंड द बायोडाइवर्सिटी। चलिए, ग्रीन जीडीपी रेफर्स टू द जीडीपी दैट इंक्लूड्स द कॉस्ट अक्यूर्ड टू द एनवायरमेंट डैमेज। ऑफ कोर्स एनवायरमेंट डैमेज को हम लोग कंसिडर करेंगे, बिकॉज आजकल हम लोग सब लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, सो इट वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, ग्रीन जीडीपी, तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट टेक्स इनटू अकाउंट द यूसेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। भैया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आपका सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो हम लोग उसको भी कंसिडर करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, जो डिस्ट्रक्शन होती है उसकी वैल्यू को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमारे पास आता है जीडीपी। अब आप ये पूछोगे कि सर जीडीपी कोई कंट्री कैलकुलेट भी करता है क्या? नहीं, अभी ग्रीन जीडीपी कोई भी कंट्री कैलकुलेट नहीं करता है। अगर आप ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो आपके ओवरऑल जीडीपी फिगर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, और जब आपकी ग्रोथ रेट कम हो जाएंगी तो दुनिया आपकी इकोनॉमी में विश्वास नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए ग्रीन जीडीपी नहीं निकाला जाता है। एक साल 2006 और 7 में आई गेस चाइना ने ग्रीन जीडीपी निकाला था अपना, लेकिन उसके फिगर्स बहुत कम हो गए थे जीडीपी के, सो उसके बाद उन्होंने भी बंद कर दिया। बट या इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स अ नोवल कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए, ऑल दीज 12 क्वेश्चंस वर फ्रॉम योर प्रीलिम सेक्शन। नाउ वी हैव ऑल्सो टेकन दीज 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द मेंस सेक्शन एज वेल। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम द 2019, दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम द 2020। इसकी एनालिसिस हम करेंगे आपके प्रीलिम्स के बाद। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद। इट इज आर्ग्यूड दैट द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंक्लूसिवनेस एंड सब्सटीट्यूट, एक मिनट इसको ही ले लेते हैं, and inclusiveness and sustainability together comment on this section. So it is talking about the inclusive growth. So question is around your inclusive growth and sustainable development. This was a question asked in 2019. What about the second question? It talks about the challenges and the opportunities. What are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can the income of the farmers be substantially increased by encouraging food processing? देखिए, food processing this is one of the favorite topic of UPSC. Why? क्योंकि 2019 में भी there was a question about food processing. तो बैक टू बैक यूपीएससी ने जो है 2 साल फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हो सकता है तीसरे साल भी पूछ ले। तो फूड प्रोसेसिंग इज अ वेरी हॉट टॉपिक, जिससे हम लोग 2000 आपके प्रीलिम्स के बाद में इसको हम एनालिसिस करेंगे। 2019 में जो क्वेश्चन आया था फूड प्रोसेसिंग वाला, उसकी भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो all these 12 questions that we have covered today, definitely this was not a class of the topic, otherwise it would have taken 2 hours. इसको पूरे को टॉपिक को कवर करने में कम से कम 2 घंटा लग जाता है, इतना टाइम हमारे पास है भी नहीं। और बिकॉज आई ऑलरेडी अज्यूम दैट ऑल ऑफ यू हैव आइडिया अबाउट द जीडीपी, जीएनपी एंड ऑल दैट। लेकिन देखिए, टॉपिक जब भी आप कोई पढ़ते हो ना, आप उसको जो है 30-40% रिटेन कर सकते हो, लेकिन किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आपने उसके 2-3-4 क्वेश्चन अगर लगा लिए तो आप उसकी आपकी रिटेनिंग पावर 70-80% हो जाती है। सो दैट इज वाई दिस टेस्ट सीरीज एंड दिस MCQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको पता है पहले से टॉपिक, आई नो आपको आता है पहले से, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रशअप हो गया है, आप उसको डिफरेंट एंगल से देखते हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस नेशनल इनकम। अगला टॉपिक हम लोग परसों लेके आएंगे। ठीक है, सो तब तक आप जो है हमारे चैनल पे बने रहिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो लाइक बटन तो आप जरूर क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज नई सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आए, ताकि हम लोगों को भी एनकरेजमेंट मिले यहाँ से। तो यू नीड टू शेयर दैट वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लिंक विंक शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अगर हमारा आता है, वैसे तो परसों वीडियो आएगा एनालिसिस वाला, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।